Your version 1 is better than your version none. So I always say success is shabby. Never feel that you have missed the bus. Fear of failure को भूल जाइए. It's not how much talented you are, it's all about how much consistent you are. आपके पास कोई सा भी स्किल हो, आपके पास कोई सा भी बिजनेस आइडिया हो, you just need to work on it and just start. Money is in the air. If your intent is pure and you have the passion to drive, you can run a business. Corporate में अलग अलग टीमें होती हैं, बट ट्रस्ट मी ये इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है. एक इंडिविजुअल खुद भी आज के समय में एआई की हेल्प से ये सारा का सारा खुद कर सकता है. एंड यू कैन रन अ वन मैन शो और अ वन वुमन शो. इट्स वेरी इजी. Hello and welcome to the another episode. Today we have with us Pratik Warshane, who is the founder of Concept2 Company and someone who has helped so many people turn their business dreams into reality. So if you are someone who has ever aspired to start a business, maybe you're a coach, consultant or anyone with a vague business idea in mind, this episode is for you because you are going to get so many practical tips that you can start implementing right away. So let's get started. So welcome Pratik and thank you so much for joining us. Thank you, Kritika, for inviting me. Always happy to help my fellow businesspreneurs, solopreneurs to build their businesses from scratch, and that's what excites me. So very happy to help people who really want to make big businesses and they have ideas and they want to grow their ideas to business. ये जो businesses बन रहे हैं, इंडिया जो इतना thrive कर रहा है वो इसलिए क्योंकि now we have understood the science कि किसी भी आइडिया को आइडिया से लेके बिजनेस तक कैसे बनाना है. नॉट ओनली जस्ट बिजनेस, इट हैज़ टू बी अ वेरी सस्टेनेबल बिजनेस, इट हैज़ टू बी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. अब लोगों को समझ में आ रहा है इट्स नॉट ऑल अबाउट ग्रोथ. जैसा कि आपने देखा कई कंपनीज बीच में क्रैश हो गई पोस्ट कोविड एरा बिकॉज एवरीवन वाज अबाउट ग्रोथ 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 ग्रोथ. नहीं, आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है. एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर जनरेशन फॉर मेकिंग सस्टेनेबल बिजनेस. जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं लाला बिजनेस, राइट? ऑलवेज प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन एंड येट स्केलिंग. सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड. And once I learned this, I tried to do it by my own. I started a company called Concept2 Company, where I helped solopreneurs to make their first sale, to make their first product, to make their first business, and then make them really big. So my best case studies have made around $2.5 million, around 18 crore, 10 crore, 5 crores. Many of them have started with their run rate of 3 lakh per month, 5 lakh per month, 10 lakh per month, 50 lakh per month. I know these numbers look big, but trust me, everything is possible. So let's say I have an idea. Now, how do I validate my idea कि this is worth being a business? And I know in your coaching you also does a exercise around it. So how do you do that? Sure, very good question. देखिए, आपने पहली स्टेप सही ली है बिकॉज मैक्सिमम लोगों को जो मैंने देखा है आजकल जो बडिंग एंटरप्रेनर बनना भी चाहते हैं, राइट? होता क्या है कि हमें एक आइडिया आता है, राइट? आइडिया सबको आता है. डू यू नो हाउ मेनी थॉट्स वी हैव इन अ डे? मेक अ रैंडम गेस. थ्रो मी अ नंबर. 12,000. इट्स 70,000 अ डे. ओके, उसमें से आपका बिजनेस आइडिया सिर्फ एक थॉट है. तो आउट ऑफ दो सो मेनी थॉट्स, राइट, सिर्फ एक थॉट है आपका. तो होता क्या है, मैक्सिमम लोग ना पहले एक आइडिया सोचते हैं और तुरंत उसका कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बना देते हैं, राइट? लेट्स से आई एम वेरी गुड इन कुकिंग, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत एक कुकिंग का कोर्स बना दूंगा, एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड देन आई विल वेट फॉर मिरेकल टू हैपन. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. इट इज नॉट अ फ्लूक. देयर इज अ कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस जो कि आपको करना पड़ेगा, जिसका पहला स्टेप क्या होता है, बिजनेस आइडिया वैलिडेशन इटसेल्फ, राइट? अब बिजनेस आइडिया वैलिडेशन है क्या? बेसिकली बिजनेस आइडिया वैलिडेशन में हम क्या करते हैं कि लेट्स से आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, उसे आपने सबसे पहले दो जगहों पे वैलिडेट करके देखना है. एक है सेकेंडरी रिसर्च और दूसरा है प्राइमरी रिसर्च. मैं सेकेंडरी रिसर्च को प्राइमरी रिसर्च से ऊपर क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि सेकेंडरी रिसर्च का मतलब है आप गूगल पे जाएं, आप askthepublic.com पे जाएं, आप ऐसी और सारी वेबसाइट्स पे जाएं और अपनी बिजनेस आइडिया की प्रॉब्लम को लिखें. बिजनेस आइडिया को ना लिखें, प्रॉब्लम को लिखें. आप खुद अपनी बिजनेस आइडिया वैलिडेशन करना चाहती हैं तो आपको करना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग विच कैन बी सॉल्व, और फिर वो अपने प्रॉब्लम्स देखनी है कि क्या वो रेलिवेंट है, क्या उसका एक कंसिडरेबल बिजनेस मार्केट है. अगर है देन यू हैव टू गो विद द प्राइमरी रिसर्च. ये हो गया सेकेंडरी रिसर्च जिसमें आपने गूगल इंटरनेट की मदद ली, नो ह्यूमन इन्वॉल्व.
प्राइमरी रिसर्च क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन सब से पूछते हैं. वी क्रिएट अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर केस स्टडी, कस्टमर सर्वे जो उन लोगों को भरना होता है, राइट, जिसके थ्रू हमें जो इन्फ्रेंसेस मिलते हैं उससे हमें समझ में आता है कि पेन प्रॉब्लम क्या है. आई गिव यू अ क्लासिक एग्जाम्पल. मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने who were a career counselor for teenagers. So what they were doing was she was focusing entire product with respect to the teenagers only. और वो teenagers से ही बात कर रही थी. जी. हमें इवेंचुअली पता लगा कि टीनेजर्स के करियर डिसीजंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनके पेरेंट्स का होता है rather than teenagers. So what we did was हमने पेरेंट्स से पूछा कि आपके पास क्या क्या पेन प्रॉब्लम्स हैं. डू यू नो आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है. 300 टाइप ऑफ करियर प्रोफेशंस को जानता भी है या नहीं, बिकॉज देयर आर मोर देन 300 काइंड ऑफ करियर ऑप्शंस विच करेंटली पीपल हैव, राइट. अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते. तो जब हमें वो इन्फ्लुएंस मिले, वी वर एबल टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स सेंट्रिक थे, एंड एक परफेक्ट प्रोडक्ट उन्हें मिल गया जिसके थ्रू दे वर रेडी टू लॉन्च देयर services, and now they are doing very good. So that's how we do a business idea validation. We first do a secondary research, then a primary research, and finally हम एक business idea पे आ जाते हैं जिसके अंडर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग बकेटाइजेशन के थ्रू एज अ सर्विस और अ प्रोग्राम बेच सकते हैं. Mostly, we just jump into, and I think most of the people take a emotional decision. It's That's not rational decision. So now let's say, okay, I have a business idea, but I was reading somewhere that most of the small to medium sized businesses fail within 1 to 3 years of very conception. What do you think is the major reason for that? उसका एक ही रीज़न है, मतलब मैं आपको इसको थोड़ा एलैबोरेट करके बताऊं तो एक ही रीज़न है उसका, फियर ऑफ कमिटमेंट, राइट. तो फियर ऑफ कमिटमेंट आता क्यों है? फियर ऑफ कमिटमेंट आता है सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर से, राइट. इसमें दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहले होता है फियर ऑफ फेलियर. वेरी फ्यू पीपल आर वेरी ओपन टू एडमिट दैट हाँ मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, राइट. इसके मैं सॉल्यूशन पे बाद में आता हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. द सेकंड ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ दिस इज जो लोग ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं वो है परफेक्शनिज्म, राइट. आई विल से ये फियर ऑफ फेलियर का ही एक ग्लोरीफाइड वर्जन है. वाई यू वांट टू बी परफेक्ट, देन ओनली आई विल स्टार्ट, राइट. क्या कोई आज तक लाइफ में या वर्ल्ड में कभी परफेक्ट हुआ है? इवन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, राइट, वो खुद कहते हैं कि मैं आज भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ, इन यंगस्टर से कुछ ना कुछ सीखता हूँ. इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट. सो नोबडी कैन बी परफेक्ट एवर. थॉमस एडिसन हैड 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट बिफोर डिस्कवरिंग लाइट बल्ब. सो इट्स लाइक अ ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ फियर ऑफ फेलियर के यार मुझे परफेक्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा, परफेक्ट एक प्रोडक्ट मिलेगा, परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलेगा तो मैं स्टार्ट करूँगा. नो, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट. सो इसके दो मेथड होते हैं. एक होता है यू हैव टू जस्ट स्टार्ट. आई ऑलवेज से योर वर्जन 1 इज बेटर देन योर वर्जन नन, वरना आप सोचते ही रह जाएंगे. लाइक आई सेड 70,000 थॉट्स अ डे. वो थॉट कब आके कब निकल जाए पता भी नहीं लगेगा, राइट. एंड मैनी ऑफ द पीपल हु आई हैव सीन बीन सक्सेसफुल हियर इज हु हैव एक्चुअली कमिटेड डिस्पाइट बीइंग शैबी. सो आई ऑलवेज से सक्सेस इज शैबी. बहुत लोगों को लगता है जिन्होंने अच्छा काम किया होता है, पैसे बनाए होते हैं, दे आर प्लेन लकी, राइट, हो गया. नो, अगर आप उनका बैक ट्रैक स्टोरी देखेंगे, दे हैड स्लीपलेस नाइट, दे हैड फेलियर, दे हैड अ लॉट ऑफ फेल लॉन्चेस, राइट. बट इवेंचुअली सक्सेस आती है बिकॉज सक्सेस शैबी होती है, वो साइनसोइडल होती है, कभी ऊपर होगे कभी नीचे होगे, बट यू हैव टू जस्ट स्टार्ट. द सेकेंड थिंग विच आई विल से इज यू हैव टू कट थ्रू द ओवरवेल्म. नेवर फील दैट यू हैव मिस्ड द बस, राइट. काफ़ी लोगों का क्या होता है, एज गैप आ जाता है, करियर गैप आ जाता है, एंड वो सोचते हैं कि इट्स टू लेट, राइट, और इट्स टू अर्ली. अलग अलग चीज़ें हैं. मे बी मैं अभी अभी मदर बनी हूँ, मेरे बच्चे को थोड़ा टाइम चाहिए, एक्सेट्रा, राइट. डोंट फील दैट यू हैव मिस्ड द बस, क्योंकि जहाँ जहाँ आप नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर लेके जाते हैं, इट विल कट थ्रू योर एम्बिशंस, पैशन, एंड देन यू विल गेट ओवरवेल्म्ड बाय योरसेल्फ. तो उसे कट करने का सबसे बढ़िया तरीका है नेवर फील यू हैव मिस्ड द बस. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डू इट. बी इट शैबी. फियर ऑफ फेलियर को भूल जाइए. जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, यू हैव स्टार्टेड विद दिस पॉडकास्ट सीरीज, राइट. So Pratik, I'll tell you something which is very very relatable with what you have just said. 3 years back, I think I thought of starting a YouTube channel, and when I looked for the video that I was about to make, there were like hundreds of videos, and I was so overwhelmed कि मेरा वीडियो कौन देखेगा. There are already tons of videos, but I feel अगर वो मैंने 3 साल पहले स्टार्ट कर लिया होता
तो I would have gained so much experience, but the problem is there's so much noise out there कि हम सब बहुत overwhelm हो जाते हैं. ओवरवेलम हो जाते. दैट्स ट्रू. ये मेरे संग भी हुआ था. टू बी ऑनेस्ट, आई वाज डूइंग गुड बिजनेस, राइट. व्हेन आई स्टार्टेड टू स्केल दिस बिजनेस, मैंने यूट्यूब चैनल मैंने भी स्टार्ट किया है. आई एम नॉट सो कैमरा सेवी पर्सन, टू बी ऑनेस्ट. जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए थे, मैं इम्प्रॉम्प्टू जाता था, पर वो समहाउ लोगों को वही स्टाइल मेरा पसंद आने लग गया कि दिस गाय इज़ वेरी ऑफ स्क्रिप्ट. Candid, natural, मतलब yeah. स्क्रिप्टेड नहीं लगते मेरे पॉडकास्ट, राइट. सो बाय द टाइम आई हैड माई 5th पॉडकास्ट, व्हाट हैपेंड, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, Yeah. राइट. एंड मेरे फर्स्ट 5 वीडियोस पे, कैन यू गेस मेरे फर्स्ट 5 वीडियोस पे 10 डेज में कितने व्यूज़ आए? 2000. 1000. यू आर वेरी नियर. मेरे फर्स्ट 5 वीडियोस पे 10 डेज में 7 व्यूज़ आए, सबके मिला के. ओके, सो देयर वर फ्यू वीडियोस दैट 0 व्यूज. ओके, कुछ के तो एक व्यूज मैंने ही देखे थे, राइट. सो आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड, बट आई अंडरस्टूड द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी. इट्स लाइक, अगर मैं आज एक वीडियो डाल रहा हूँ तो मुझे लेट्स से आप 2 दिन में भी एक वीडियो डाल रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट फॉर 10-20 days, एंड दैट्स वेयर द मैजिक स्टार्टेड. After my 5 videos, the 6th video garnered 120 views. The 7th video, I always made sure that I am releasing a video every 3 days and I'm releasing a short every day. Consistent जो होता है वही जीत जाता है. It's not how much talented you are, it's all about how much consistent you are. Yeah. So coming to that point, it's really very hard to maintain the consistency on your own, and that's where your role come in as a business coach or a mentor, or even if you cannot afford one, an accountability partner. So at this point, would you like to explain what does you do as a business coach and how it can be very helpful for people? I've learned a lot of things from corporates, right? Corporates में क्या होता क्या है, there are different departments for all these things जो मैं teach करता हूँ, right? तो ये knowledge somehow corporate world में ही concise रह जाती है, right? Common एंटरप्रेनर्स जो बेसिक सोलोप्रेनर्स हैं, जो अकेले 1 मैन शो चला रहे, 1 वुमेन शो चला रहे, उनके पास नहीं पहुंचती, राइट. तो व्हाट आई डिड वाज आई कंपार्टमेंटलाइज ऑल दोस पॉइंट्स, और फिर मैंने उसे एक प्रोग्राम में डाला, राइट. और फिर उसे चलाया. जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया, व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस और थ्राइव अ बिजनेस. सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए. उस बिजनेस आइडिया के, अगर आपका बिजनेस आइडिया बन जाता है, लेट्स से इट्स अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, उसके अगेंस्ट आपको प्रोडक्ट्स बनाने. वो प्रोडक्ट्स अगर बिजनेस आइडिया के सिंक में बन रहे हैं आपके, राइट, तो वो ज़रूर बिकेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना हो मेरा बिजनेस आइडिया वैलिडेशन, वो हमेशा कस्टमर के पेन पॉइंट्स पे होता है. एंड यू वोंट बिलीव कृतिका, जब भी मैं अपने क्लाइंट से, जो कि खुद एक बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि आप किन के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो बताते हैं कि अपना एक कस्टमर पर्सोना बताइए. मैक्सिमम लोग कस्टमर पर्सोना ही नहीं बता पाते, राइट. हवा में तीर चलाना कहते हैं इसे, राइट. तो जब हम उनका कस्टमर पर्सोना बनवाते हैं, फिर हम पूछते हैं कि अब अपने कस्टमर्स के 10 पेन पॉइंट बताइए. यू विल बी शॉक टू नो कि वो इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट स्टिल वो 2 या 3 से ज़्यादा कस्टमर पेन पॉइंट्स नहीं बता पाते. आई डेलिबरेटली मेक देम create those 10 pain points, जिसमें they get uncomfortable, but that's where you start thinking about it. जब आप वो 10 पेन पॉइंट्स लिखते हैं एंड देन उसके अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ्स लिखते हैं और तब प्रोडक्ट बनाते हैं, मैरिंग बोथ ऑफ देम, वो प्रोडक्ट्स 100% काम आते हैं लोगों के. होता क्या है, उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स किसी ना किसी पेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड हेंस यू गेट अ विनिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन. उसके बाद सिर्फ आपको मार्केट करना है. मार्केट करने के लिए यू हैव टू हैव परफेक्ट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. देन आई हैव माई प्रोप्राइटरी सेल्स मास्टरी कोर्स, जहाँ मैं 15 टाइप के सेल्स सिखाता हूँ. आई हैव अ टैगलाइन विच इज़ वेरी फेमस इन द इंडस्ट्री, दैट यू कैन कन्विंस एनीवन फॉर एनीथिंग एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस. पूरा इकोसिस्टम के लिए ना कॉर्पोरेट में अलग अलग टीमें होती हैं, बट ट्रस्ट मी, ये इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है. एक इंडिविजुअल खुद भी आज के समय में AI की हेल्प से ये सारा का सारा खुद कर सकता है, एंड यू कैन रन अ 1 मैन शो और अ 1 वुमेन शो. इट्स वेरी इजी. I have one question now. Can you give me like a real life example of one of your client who was a businessman or a businesswoman? What were they doing wrong and how you helped them, and what were the results after your intervention? Sure. I'll give you an example. I'll not say a client, but a very good businesswoman, right? और उनका business, she didn't had that. She had the talent, she had the skills, but she didn't had that belief कि वो कभी बिजनेस बना पाएंगी. एंड येस, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज शी वॉज माई मदर. ठीक है, तो मैं अपनी मदर की कहानी बता रहा हूँ. तो ड्यूरिंग द कोविड डेज वी हैड शिफ्टेड टू बैंगलोर,
और सब कुछ लॉकडाउन था, राइट, जी। बट आप विद इन द सोसाइटी आप मूव कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, राइट. सो वंस आई वाज डूइंग अ बिजनेस मीटिंग, मैं ऐसे ही बाहर आया, ड्राइंग रूम में मम्मी से बात कर रहा था, तो मम्मी कहती तू सबके बिजनेस बनवाता है, कभी मेरा भी बनवा. तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका बिजनेस बनाता हूँ, बिकॉज जी. शी गिव मी दिस एज अ चैलेंज. तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए आपको क्या पसंद है. शी सेड कि मुझे कुकिंग पसंद है, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ. ऑब्वियसली एवरी इंडियन मदर हैज़ देयर टेस्ट, राइट. तो Yeah. मेरी मम्मी नॉर्थ मम्मी के इंडियन हाथ का स्वाद. हाँ, तो वो नॉर्थ इंडियन खाना, एंड स्पेसिफिकली आई नो कि उन्हें चाट्स पसंद है, उन्हें चाट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, वो इंडियन चाट्स जो नॉर्थ इंडियन चाट्स होते हैं, एंड गोलगप्पे, समोसे एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. सो आई थॉट कि ठीक है, इसी पे बिजनेस बनाते हैं, एंड आई न्यू इट विल वर्क, राइट. हाउ, बिकॉज मैंने बिजनेस आइडिया वैलिडेशन कर लिया था. सो व्हाट वी डिड वाज, हमने कुछ एक प्रोडक्ट्स बनाए. उन प्रोडक्ट्स के लिए पहले आइडिया वैलिडेट किया कि यहाँ लोगों को क्या पसंद आएगा. लेट्स से ये सोसाइटी ही है जहाँ 1000+ हाउस होल्ड्स हैं. सो आई गॉट टू नो कि 60% ऑफ देम आर, लेट्स से, केटरिंग टू नॉर्थ इंडिया. तो मेरे जो चार्ट्स थे वो वर स्लाइटली बेंट टू नॉर्थ इंडिया, जैसे कि हो गया आपके गोलगप्पे, योर समोसा चाट, समोसा छोले चाट. देन वी केम टू द नेम, right. It has to have a name which really resonate with the client we are working with, right. So we came up with the idea of Nani's Kitchen. Nani's Kitchen. Yeah. Okay. So because she was a nanny and she used to make it for her ग्रैंड डॉटर, तो उसी के लिए हमने नानी किचन्स रखा. वी क्रिएटेड ऑल दोज स्टेप्स जो मैंने आपको अभी बताया. हमने एक मार्केटिंग चैनल बनाया, वेबसाइट बनाया, हमने ब्रोशर्स बनाए, उसे हमने टेलीग्राम ग्रुप में पुश किया, एंड आई यूज्ड ऑल द टेक्निक्स जो मैं बिजनेस में यूज़ करता हूँ, राइट. सो हमने क्या किया, वी स्टार्टेड द फर्स्ट वी स्टार्टेड वॉज विद गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी भी कहा जाता है, एंड वी स्टार्टेड विद द प्री ऑर्डर्स, राइट. लाइक आई सेड, एवरी बिजनेस टेक्स टाइम. तो पहले हफ्ते हमें 3-4 ऑर्डर आए, राइट. हमने लॉन्च किया, लोगों को पता लगा. व्हाट वी डिड वाज, वी डिड कस्टमर रिव्यूज़ टू द मैक्स, राइट. हमने पूछा कि आपको टेस्ट कैसा लगा. हमने हैंड रिटन नोट्स डालने शुरू किए अपने हर एक ऑर्डर के संग, राइट. एंड इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम. उन्हें बड़ा अच्छा लगा. हमारी पैकेजिंग बड़ी अच्छी होती थी, और ये जो पर्सनलाइज टच होता था जिसमें हमने नोट्स लिख के देते थे, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा. इवेंचुअली नेक्स्ट वीक हमने समोसे छोले का अगेन एक प्रोडक्ट ऐड किया, राइट. एंड इट टुक ऑफ. वो इस लेवल तक ग्रो हो गया कि विद इन 2 months इटसेल्फ आवर इन हाउस किचन वॉज लाइक अ पेंट्री, एंड ऑर्डर्स आने लग गए. बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे. इनफैक्ट माइंड यू, ये सारे के सारे प्री ऑर्डर्स होते थे, फुल्ली पेड ऑर्डर्स होते थे. तब भी हम ओवरवेलम हो गए थे. तो इवेंचुअली व्हाट आई डिड वाज, वो इतना ज़्यादा हो गया पॉपुलर कि हमें, आई हैड टू स्टॉप इट बिकॉज माई मॉम इज़ अ सीनियर सिटीजन. और फिर हमने उसे रोकना पड़ा. तो मैंने एक लास्ट पोस्ट डाला कि दिस इज़ द लास्ट ऑर्डर ऑफ नानीज किचन, तो वट एवर यू वांट प्लीज़ लेट अस नो, राइट. हमने एक ही प्रोडक्ट रखा था उस समय, समोसे छोले. एंड वी थॉट अराउंड 70-80 प्लेट्स का ऑर्डर आएगा, बिकॉज वी वर कन्फाइंड इन द सोसाइटी, कोविड चल रहा था. स्टार्टेड विद 40, देन 80, then crossed 100, then crossed 150. At around I think 160, 165, I had to put a stop to it because I knew कि इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना बनाना, right. We are not professional cooks. तो I put a stop there. And you won't believe कि इतना overwhelming response हमें उसका मिला कि I got a call from a colonel's wife within our society, and she said कि Pratik, I need that samosa chole, please. There's a typical North Indian taste which I really like, and I need just 1 plate. So my mom had kept 4 plates for us, हम family वालों के लिए. So we gave one to her because of customer experience is always, customer satisfaction is paramount. तो हमने उन्हें वो दे दिया, right. And we got so many reviews. When I gave her that stash of money, right, my mom really got overwhelmed and she got emotional, and she said, yes, business can be made out of anything, right. Yeah. So it's just that you have to just start. अब इमेजिन करिए, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ. अगर उस दिन जब मेरी मॉम ने मुझसे पहली बार कहा था कि कुछ करते हैं, had I taken it lightly और मैं छोड़ देता, और taken it as a joke, नानीज किचन कभी बनता ही नहीं. So इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, आपके पास कोई सा भी स्किल हो, आपके पास कोई सा भी बिजनेस आइडिया हो, you just need to work on it and just start. Money is in the air. If your intent is pure and you have the passion to drive, you can run a business. Thank you so much, Pratik. That was very insightful, and I'm sure your mother must be very, very, very proud of you. She is proud of herself now. Yes. So, do you have any special message or anything you want to share? One thing I would like to tell to everyone is, like I said, there are 2 key
things which you always remember, you should always remember. One is you have to just start. When you fail, like I said, fail होगा, fear of failure को भूल जाइए. You have to fail fast and you have to fail forward, right? लोग है ना सिर्फ इस लाइन के पहले हाफ को समझते हैं कि फेल फास्ट. नो, फेल फास्ट बट फेल फॉरवर्ड. एक गलती अगर आपने कर दी है, आप फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, बट फेल फॉरवर्ड. अगली बार वो गलती मत कीजिए, राइट? आप कोई नई गलती कीजिए. आई विल से कि उससे लर्निंग्स लीजिए, उससे कुछ और आगे बढ़िए, वहाँ फिर गलती कर सकते हैं. आप बार बार गिरेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आप सेम चीज में गिरेंगे, then you are going nowhere. Yes. Right? So I always say just start, and the second thing is you have to fail fast and fail forward. If you fail fast and fail forward, right, there's a very high chance that you will create some product, some business which will be very very thriving, which will be very very successful, which will be very very sustainable. Yeah. Right? इसलिए फेल होते रहिए, फेल होने से डरिए मत, और फॉरवर्ड फेल होइए. आगे अपनी स्किल में कुछ ना कुछ जोड़ते जाइए. एवरी लर्निंग विल बिकम अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस. एंड इवेंचुअली 8, 10, 11, 20 हज़ार फेलियर्स के बाद कोई ना कोई एक आपका बिजनेस बन जाएगा जो कि एकदम रॉक सॉलिड, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, ग्रोइंग बिजनेस होगा. बिकॉज यू दैट इज बेस्ड ऑन बैक एंड ऑफ दोज 1000 फेलियर्स, राइट? तो वो होना ही होना है. सो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट and then fail fast and fail forward. Try again until you succeed, right? Yes. So yeah, okay, that is one mantra that I'm going to take it from this episode. And thank you so much, Pratik, once again. And yeah, looking forward to see you again here sometime. Absolutely. Best of luck for your podcast series, and I hope you interview a lot of budding entrepreneurs who are doing good in their field, and who are making a change to the society, because we need all of them to make India great again. Yeah. Thank you, Pratik. Thank you.